guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you guys are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this video we are going to deal with the topic the living world for class 6, and that is just chapter 2 for Maharashtra board students. So are you guys excited? And if you guys are, then don't forget to tell me in the comment section. Without doing any further ado, let's begin. But guys, before beginning I have a very important thing to tell you all, and that is that if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then don't forget to subscribe to my YouTube channel, like this video, hit on the like button. You can also press on the notification bell so that you can get notified each time I come live or I upload a new video, and share this video as much as possible. No need to sleep guys, but now before beginning I have a very motivational quote for you that you require in order to get a kick, right? So here it goes. Study hard no matter if it seems impossible, no matter if you have to no matter if you have to up all night, no matter if it takes time. Just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. Okay, sure this. Let's begin now with the content मतलब क्या what all are we going to discuss in today's session. So first of all, characteristics of living things. What are the some characteristics that living things possess or they do have? Then we are going to learn. So these characteristics are growth, food, food as a necessity, let's say digestion or nutrition, then respiration, excretion, responsiveness, responding to stimuli, okay, responding to stimuli and moving, like movement, reproduction, a lifespan, a definite lifespan, a cellular structure, useful living things, harmful living things, wild animals. And ये जो exercise है ये मैं नहीं करवा रही, you guys have to do it yourself, ठीक है? ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि I wanted to say you guys something that आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो ना, आपको मेरे सेशंस देखने के बाद महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है उससे लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ही जो जो लाइन टू लाइन महाराष्ट्र बोर्ड की बुक होती है वही मैं अपने प्रेजेंटेशन में डालता हूँ. अब ये क्यों होता है? क्योंकि यार आप एक मेरी सेशन देख के वन शॉट ही नहीं कर रहे, आप अपनी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ भी रहे हो. अगर मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सारे मैं इंक्लूड कर देती हूँ. तो यार महाराष्ट्र बोर्ड की बुक को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने की ज़रूरत है तो क्या बुक को छुए ही नहीं, वन शॉट सेशंस देख के इतना ज़्यादा सेटिस्फाई भी मत होना, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है गाइस. एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक्सरसाइज खुद से मत करना भूलना, ठीक है? करना मत भूलना, सॉरी. सो डोंट फॉरगेट टू डू द एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ. कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू. द डाउट सॉल्विंग फॉर्म इज ऑलवेज देयर फॉर यू. जिस क्या लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउट लिख दो, उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. मैं आपको हमेशा सॉल्यूशंस देते हुए मिलने वाली हूँ अपने हर एक न्यू वीडियोस में. अब चलिए आप बिगिन करते हैं विद इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में यार कहीं ज़्यादा हमारे इस वर्ल्ड में दो मेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टू मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एंड दीज कैटेगरीज आर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स एज इफ ह्यूमन्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, एंड प्लांट्स एज इफ the mango tree that you're seeing, the banyan tree that you're seeing, and etc. the alg, these are some प्लांट्स, ठीक है? ये सारे आपके क्या हो गए? प्लांट्स आ गए. तो यार प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होते हैं? व्हाट डू आई मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होते हैं? मतलब यार एक सच बात बताओ, ग्रोथ वो सिर्फ एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता. फूड उनकी सिर्फ एनिमल्स को ज़रूरत है, प्लांट्स को नहीं ज़रूरत है. रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स ही रिस्पायर कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं रिस्पायर कर सकते. एक्सक्रीशन सिर्फ एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स एक्सक्रीट नहीं करते. ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स की तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की जब बात आती है दैन दैट इज सेम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? वेदर इट्स प्लांट और एनिमल्स. हाँ, सम में डिफर, वो अलग बात होती है, ठीक है? सम में डिफर, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह मिल जाएंगे आपको. बट गाइज या सो ये चैप्टर है वो क्लास 6 CBSE साइंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, चैप्टर मे बी 10 और समथिंग, या मे बी इट्स 10 चैप्टर, आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट दिस, बट या चैप्टर नेम इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सेम चैप्टर उसमें आ गया है, तो आप वो सेशन देख लो. ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करना है तो, ठीक है? सो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करता है, उनको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन द यंग वंस एंड द एडल्ट्स इन दिस पिक्चर? तो ये एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, दिस विल रिक्वायर 1 सेकेंड एंड हियर इट गोज. सो ये देखो, ये एक किड है, बच्चे हैं दोनों, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे एक उनके पास
प्यारा सा क्या है, ये डॉग है, ठीक है, इनका डॉग है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये डॉग ही है, यस गाइस इट इज डॉग ओनली। देखो पूंछ उसकी टेढ़ी है, पूंछ किसकी टेढ़ी होती है, कुत्ते की। वी ऑलवेज स्पीक ना कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी, वैसी उसी तरह सेम वे। तो यार दीज आर 2 चिल्ड्रन, लाइक यू नो दीज आर किड्स। अब ये थोड़ा ग्रो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी ये 3 साल के हैं, ये 3 साल का है बच्चा, और ये हो जाएगी तब तक 5 साल की, तो थोड़ा और ग्रो हो जाते हैं। दीज पीपल ग्रो। अब यार ये अब ग्रो हो गया, अब क्या बन गया, ये किड्स हैं। ये क्या है, ये किड्स हैं। मैं एक सेकेंड यहाँ पे चेंज करके लिखती हूँ, देख नहीं रहा है। यस गाइस, सो दीज पीपल आर किड्स, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एडल्ट्स हैं, या फिर एडल्ट्स बोलो नहीं तो एक काम बोलो, इसके टीनेजर्स हैं, टीन्स हैं, ठीक है। ये आपके एडल्ट्स हो गए। और ये जो दिख रहे हैं ना, ये ओल्ड पीपल है, बुढ़े हो जाते हैं ना वो। तो यार यही बच्चे जो अभी, मतलब यही लोग जो कभी बच्चे हुआ करते थे वो बूढ़े हो गए। कैन यू गाइस सी दिस पिक्चर? These people only who used to be kids at some period of time, they have now become old people, ठीक है, वो पुराने हो चुके हैं। अब कुछ डिफरेंसेस देख सकते हो। डिफरेंसेस इज अबाउट हेयर, वो ग्रोथ हो रही है, देखो इनकी इतनी सी है, फिर यहाँ पे थोड़ी बढ़ी, अब तो बहुत बढ़ गई, फिर बड़े हुए ना, बुढ़े हुए तो वो सफ़ेद हो गई। कैन यू गाइस लुक एट द बाय द लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर यू कैन नो। आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो ये डॉग पहले वाले पिक्चर में भी, दूसरे वाले पिक्चर में भी, तीसरे वाले पिक्चर में भी, चौथे वाले पिक्चर में डॉग क्यों नहीं है? बिकॉज डॉग की लाइफ स्पान इज नॉट as long as the lifespan of humans. Humans can live up to 100 years. Humans can live up to 100 years. Humans can live up to 110 years. ठीक है, रह सकते हैं approximately. But dogs have a short lifespan. But dogs have a short lifespan as compared to humans. They do not have lifespan as long as humans. ठीक है, ये चीज़ होती है ना। आप देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जब ये लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, their height is increasing, their body shape is their body shape is changing by the time, their voice is also going to change. You cannot observe it in the picture, but yeah, that is something that is going to happen. तो ग्रोथ के बारे में जानते हैं। तो अब बेबी grows up to become an adult person, woman or man, whether it's woman or man, they both are adults, right? During the period of its growth, the baby gains in height, weight and strength. वो strength भी ले आता है। आपने देखा होगा ना, जो वो the people जो कि बचपन में कभी kids जब छोटे हुआ करते थे, जब हम छोटे होते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो चोट लग जाती है। अब छोटे बच्चे को बोलो 10 किलो का वजन उठाने, तो बेचारा कर पाएगा क्या? वो नो, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर दैट किड, क्योंकि जब छोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल का बच्चा है, तो वही खुद 10 किलो का नहीं होगा, 10 किलो का वजन वो कहाँ से उठा लेगा? ये बात होती है ना। बट इफ वी लुक एट दोस किड्स ओनली जो कि बड़े होकर WWE प्लेयर्स बन जाते हैं। अब आप बोलो वो 10 किलो के 100 किलो का भी वजन उठा लेते हैं, 100 किलो को प्लेयर्स को उठा के पटक देते हैं। बिल्कुल गाइस, उसी तरह ना कि वो क्या करते हैं, दे आर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। व्हाट आर दे डेवलपिंग? दे आर डेवलपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, यस। तो दे आर डेवलपिंग स्ट्रेंथ। वो वेट अपनी वेट इंक्रीज कर लेते हैं। वही बच्चे जो छोटे में 10 किलो से भी कम हुआ करते थे, ठीक है, वही बच्चे जो छोटे में 10 किलो से भी कम हुआ करते थे, वो बच्चे आज WWE प्लेयर्स बन गए। और आज उनकी वेट आपने इंटरनेट पे कभी सर्च की है? 200 किलो, 160 किलो, 180 किलो, 106 किलो, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे उनके वेट्स होते हैं। सो दे आर इंक्रीजिंग वेट। और वही बच्चे जो कि छोटे मृत्यु से हुआ करते थे कि लाइक आप खड़े हो ना तो उनको देख भी नहीं पाओ, आज वो लंबे लंबे से हो गए, खंबे जैसे, है ना, बिल्कुल as if some Eiffel Tower or some iron pillar is standing in front of you. इतने लंबे हो जाते हैं यार वो। आपने खली को देखा है? इज अ WWE प्लेयर, यू कैन नो मोर अबाउट हिम, यू कैन सर्च और इंटरनेट। तो आप वो जब छोटा होगा तो छोटे से इतना लंबा सा था, छोटे से इतना खंबा जितना था वो नहीं यार, उसने अपनी हाइट बड़े होके, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज हुई होगी। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि यार अब वो छोटा नहीं रहा, नाउ ही इज अ एडल्ट, अब वो ओल्ड हो जाएगा, मतलब बिकॉज ऑफ ग्रोथ हिज हाइट इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इसी पैटर्न में है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। और 18 to 21 years it requires minimum 18 to 21 years for the maximum growth, ठीक है। अब now food is a necessity
to sustain life. Plants can make their own food as they are autotrophs. ठीक है, plants can make their own food, yes they are, because they are autotrophs. Autotrophs मतलब क्या होता है people? Autotrophs मतलब क्या होता है कि they can make their own food because they are autotrophs, because they can make own food. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, own food, who can make their own food are known as autotrophs. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं गाइस? उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. अब वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अच्छा जी, बना लेते हैं, ये तो हमें भी पता है. कैसे बनाते कैसे हैं? हाउ डू दे डू दैट? वो कुछ ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक, सॉरी, ठीक है, वो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं. दे मेक यूज़ ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, फिर सनलाइट. वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, ये ध्यान रहे. कुछ बच्चे एग्जाम पे ऑक्सीजन लिख के आ जाते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ वो नहीं करते हैं. सनलाइट और फिर क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल शॉर्ट में लिख दिया. ऑक्सीजन क्या है? जो ऑक्सीजन है ना, वो बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट होता है. बाय प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस का एक बोल लो रिजल्ट होता है. ठीक है, पूरी फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है. तो ये सारे कुछ मेन वो है, ये है कुछ लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब और सिंथेसिस मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट. फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, बिकॉज दे आर यूजिंग लाइट एनर्जी. वो सन की एनर्जी यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं ना. सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको यूज कर रहे हैं. और सिंथेसिस मतलब टू मेक. ठीक है, सिंथेसिस मतलब क्या होता है? टू मेक. तो वो फोटोसिंथेसिस यूज कर रहे हैं टू मेक देयर ओन फूड. ठीक है, इसीलिए लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं टू मेक देयर ओन फूड, टू मेक फूड. तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज गाइज योर वेरी ओन फोटोसिंथेसिस दैट यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ. अब ये फोटोसिंथेसिस का जो आपका रिजल्ट होता है वो पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है प्लस ऑक्सीजन. तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ठीक है, तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो वो होता है C6H12O6, ऐसा ही कुछ होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, याद नहीं है इतना, बट या आई एम लाइक 99% श्योर दैट ये वही होगा. ठीक है, सो एक बार चेक कर लेना. गाइस, सो ये था आपका अबाउट फोटोसिंथेसिस जो मैंने आपको बताया. वो क्या करते हैं? जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है. इट इज एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, एंड देन व्हेन इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट देन व्हाट इज हैपनिंग, फिर वो वो सनलाइट का यूज़ करके वो खाना बना पाती है. वाटर उसको चाहिए होता है थ्रू द रूट्स से वाटर जाइलम पूरे सारे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. और जो CO2 है वो इनहेल कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे इनहेल CO2 एंड दे एक्सहेल ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो बन करके आ रहा है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, तो वो ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं. ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद फिर ये सारे देखो, ऑक्सीजन को वो एक्सहेल कर रहे हैं और इन कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, ये होता है. तो ये देखो, ये पूरा जो था ना, ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के ऊपर था. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. एंड गाइस, आप चलिए नेक्स्ट देते हैं. क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर ना ग्रीन सा आता है. यू कैन लुक एट द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम, दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. अब यार एनिमल्स की जब बात करते हैं तो एनिमल्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज दे फॉलो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज आई एम राइटिंग विद माउस पीपल. माउस से लिखना कितना डिफिकल्ट है आप सबको पता होगा. ठीक है, एंड या तो इसीलिए आई एम राइटिंग विद माउस, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही. सो प्लीज़ डू इग्नोर दैट. एंड एक सेकेंड, इसको इरेज करने दो. यस गाइस, सो हेटेरोट्रॉफ्स मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स टू फॉर देयर फूड. ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ये जो देखो क्रो, ये है ना, इसने यहाँ से एक लाइक उसने कोई एनिमल निकाला है, वो खा रहे. पिक्चर में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा. लेट मी जूम दिस पिक्चर. यस गाइस, तो यहाँ पे है वो जूम की पिक्चर. ठीक है, एक सेकेंड. वो देखो, उसने कुछ फिश ली है, राइट? वो दिख रही है आपको, वहाँ पे एक फिश है यहाँ पे लग रही है. गाइस, दिस इज अ फिश जो क्रो खा रहा है. इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में ये जो है ना, ये दाने चूर है. लाइक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हिंदी नहीं पता या इन इंग्लिश. दे आर फीडिंग ऑन ग्रेन्स. एंड दिस टाइगर इज हैविंग डियर.
काट के खा लिया इसने ना, ही इज़ अ कार्निवोर बिकॉज देखो बिकॉज ही इज़ अ कार्निवोर एंड ये हॉर्स है वो ग्रास खा रहा है बिकॉज इट्स अ हर्बीवोर। और यस गाइस, तो अब देखो इतना हो गया। सो नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलो, रेस्पिरेशन बोलो। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग। अब आप बोलोगे रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग, मतलब रेस्पिरेशन ब्रीदिंग आर एग्जैक्ट सेम। नो, नॉट एग्जैक्ट सेम, बट हाँ 50% आप बोल सकते हैं रिलेशन है दोनों में, एक रिलेशन है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है वो। और रेस्पिरेशन कुछ अलग होता है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन होता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का ही नहीं, मतलब एक तरह से ना ब्रेक डाउन ऑफ फूड को क्या बोलता है? डाइजेशन बोलता है, उसको डाइजेशन बोलता है। बट यहाँ पे देखो ये जो आपको जो ये रेस्पिरेशन है ये एक आप इन सिंपल वर्ड्स देखो, क्योंकि आप क्लास 6 में हो, आपको इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो रेस्पिरेशन है आपका वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, ह्यूमंस आर इनहेलिंग ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को इनहेल करके क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करके वो बॉडी में उसको जब लेते हैं, फूड आपका जो फूड है आपका वो आप खाते हो, उससे एनर्जी मिल जाती है क्या? नहीं, एनर्जी तब मिलती है जब ऑक्सीजन खुद जाके उस फूड को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, वी रिस्पायर ऑक्सीजन, वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर गेटिंग एनर्जी तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक ऑक्सीजन से ब्रेक नहीं करेगा। ये होती है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, फूड को नहीं। बट हाँ, मैं आप आगे के ग्रेड्स में से और डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको क्या किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर लाइक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है व्हेन दे इनहेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है व्हेन दे एक्सहेल। अब प्लांट्स का थोड़ा उल्टा है, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसका है? ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का है। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन की बात आती है तो रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात गांठ बांध के रख लो, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये कब की है? ये है ठीक है, ये कब की है? ये है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा बट या इट्स ओके। तो यार ये एनिमल सच एज फिश जो होती है ना, वो वही ऑक्सीजन वो इनहेल कर सकती है जो कि वाटर में डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जब तक वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती वो नहीं उसे यूज़ कर सकते। तो वो इट हैज़ टू बी डिजॉल्व इन वाटर। तो ये इतनी बात आपने गांठ बांध के अगर रख ली हो तो देखो नेक्स्ट देखो, स्नेक, माउस, हर एक ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करने की जरूरत होती है। फिशेस क्या यूज़ करें? दे आर यूजिंग देयर गिल्स। हम क्या यूज़ करें? हम अपना नोज यूज़ कर रहे हैं फॉर respiration. Now guys, next life process or let's say the characteristic of living organism is excretion. Living organisms do excrete waste products को अपने बॉडी से निकालता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज़ नन अदर देन योर यूरिया। ठीक है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। यूरिया जो कि आपके यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं, यूरिया आपके यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही होती है। ठीक है, waste substances are formed during many processes that take place in the bodies of animals such as digestion. ठीक है, takes place and these are called excreta and the process of eliminating them from the body is called excretion. What is excretion? The process of eliminating waste products or the process of removing waste products and metabolic waste from our body is known as excretion. Animals have specific organs for excretion such as we humans have some specific organs, for example urinary bladder. ठीक है, आपने excretory system देखोगे तो पता चलेगा, आगे ग्रेड्स में इसके बारे में पढ़ोगे। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, वो भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। कई बार होता है ना, प्लांट्स अपने पत्ते छोड़ रहे होते हैं, दे आर शेडिंग द लीव्स जस्ट बिकॉज ऑफ इन दिस वे ऑल्सो दे आर एक्सक्रीटिंग। वो अपने लीव्स में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं जो कि बाद में वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट, इसको देखो। ऑब्जर्व एंड डिस्कस की जब बात आती है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना चाहूँगी, ध्यान से देखो। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज। लाइट अचानक से आपकी आंखों में फ्लैश हो जाती है। क्या होता है? आप तो ऐसे हो जाते हैं, क्या हो गया, मतलब आप आँख बंद कर ले दो ना तुरंत, आप मतलब योर ब्रेन डजंट इवन रिक्वायर 1 सेकेंड टू थिंक दैट आपको आंखों को बंद करना। एक बार ट्राई करके देखो।
जैसे ही लाइट आएगी फटाक से आप आँखों को ऐसे बंद कर लोगे। तो ये आप ऐसे जो आँखों को बंद कर लेते हो ना लाइट के आते, वो आप यू आर रिस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युली। किसी ने आपको स्टिम्युली दिया, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको रिस्पॉन्स दे रहे, रिप्लाई कर रहे हो। सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, गलती से सुई चुभ जाती है, कैसा होता अजीब सा लगता है ना। योर ब्रेन डजंट इवन रिक्वायर 1 सेकेंड टू थिंक ऑफ दैट कुछ पिन वगैरह चुभा है, लेकिन आपको फट से पता चल कुछ चुभ गया, ओ माय गॉड, ओ शिट मम्मा, कुछ ऐसा फील आता है ना। द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट वर टच, जैसे उनको टच करते हुए दे आर गोइंग टू फोल्ड इनसाइड, टच मी नॉट प्लांट्स, ठीक है। At sunset, lamps of the street or country yard are lit and insects gather around the lamp. आपके जो जैसे ही लैंप आपने देखा होगा ना, हर सब जगह अंधेरा होता है, बस स्ट्रीट लाइट जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे इधर 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 बहुत सारे इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं। दे आर ऑल रिस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युली, ठीक है, दे आर ऑल रिस्पॉन्डिंग टू स्टिम्युली। तो आप ध्यान से देखो कि लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज एंड व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस, इफ यू सडनली एंटर अ cowshed, the cows and buffalo stand up, begin to move, one or two may even start moving मतलब उनकी द वॉइस, जो वॉइस निकालते हैं दैट इज नोन एज मूव्स, ठीक है, मूव बोलते हैं उसको। और वो क्या करेंगे, जैसे आप उनके बहुत सारे काउज एक साथ बैठे आप उनके पास चले जाओगे ना, तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक, वो आवाज़ निकालना स्टार्ट करेंगे, वे दे आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक मूविंग एंड दे आर गोइंग टू गेट अप एंड दे बिगिन टू मूव, ठीक है। ये सारे क्या है, मूवमेंट्स है। आपके हर एक प्लांट, आपका मिमोसा प्लांट मूवमेंट कर रहा है, दे आर टच मी नॉट प्लांट्स, एज सून एज यू टच देम दे फोल्ड द लीव्स इनसाइड, सो दीज आर द टच मी नॉट प्लांट्स, इवन you respond to stimuli sometimes. So this is the characteristics of all the living organisms that they respond to stimuli. Reproduction, the final this is a process that in which living organisms give rise to offsprings of their own kind. They are giving rise to offsprings but of their own kind. उन्हीं की तरह के, ऐसा नहीं है कि कुत्ते ने इंसान के बच्चे को जन्म दे दिया, एक बिल्ली ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दे दिया। हम ह्यूमंस, आपने कभी देखा है किसी ह्यूमंस ने कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया? ऐसा नहीं होता है। इन रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग दैट ऑफस्प्रिंग्स। इतना पता चल गया हो तो नेक्स्ट ध्यान से देखना कि कुछ ऑर्गेनिजम्स आर लेइंग एग्स, वाइल कुछ ऑर्गेनिजम्स वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग एग्स और उन एग्स में से यंग वंस निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हैन, एक सेकेंड, हैन कहाँ से, some their young ones new plants are produced from seeds, ठीक है। जो नए नए प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सीड्स से प्रोड्यूस होता है। स्टीम से कैसे, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिसमें आप रोज का प्लांट लो, उसका स्टीम को कट करके डालो तो स्टीम बाद में धीरे धीरे रूट्स ग्रो कर लेगा, ठीक है। लीव्स में से भी होता है, लीव्स में क्या, लीव्स में से कैसे होता है कि लीव्स के आगे कुछ बर्ड्स जैसे ग्रो हो जाते हैं, कुछ बर्ड्स जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ग्रो हो जाते हैं जिनको आप फिर डालो सॉइल में तो वो फिर रूट्स बना लेते हैं एंड देन दे ग्रो, ठीक है। The process by which a living thing generates new living thing like itself is called reproduction or procreation. उसको reproduction या फिर procreation भी बोला जाता है। अब why is it important? It is important for the continuity of species on earth. For the continuity of species on earth मतलब अगर कोई इंसान reproduce ही नहीं करेगा तो इंसान तो खत्म हो जाएंगे, because there is a definite lifespan for all. उसमें एक डेफिनेट लाइफ स्पान हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है। यहाँ पे ध्यान से देखो यार कि ये ट्री इतना है तब ये इतना है, ये ट्री थोड़ा बड़ा हुआ तो ये इतना बड़ा हुआ। देखो इसने क्या ग्रो की, इसने कुछ बॉडी पार्ट्स ग्रो किए। अब ये ट्री जब और बड़ा हुआ तब क्या हुआ, इसके एक बच्चे भी हो गए। अब ये ट्री जब अपने लीव्स को शेड कर रहा है तब देखो, तब यहाँ पे आपको एक ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक तो मर गया। क्या एक दिख रहा है, क्योंकि एक तो मर गया, मतलब उसकी डेफिनेट लाइफ स्पान होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं जी सकता। अब वो लीव्स जब शेड हो जाते फिर से जब नए लीव्स आ रहे हैं तो देखो अब जो बच्चा था, ये जो बच्चा था ना ये बड़ा हुआ यहाँ पे, और ये बच्चा जब बड़ा हो गया उसके बाद थोड़ा बुढ़ा हुआ और इसका एक और बच्चा आ गया। मतलब आप देख रहे हो कितना सिस्टमैटिक चल रहा है ये बड़ा होता गया, इससे कुछ बॉडी पार्ट्स डेवलप किए, फिर इसने एक दूसरा बच्चा दिया, रिप्रोड्यूस किया ऑफ देयर ओन काइंड, और फिर ये मर गया, ठीक है, ही डाइड। हम लोग मान लेते हैं एक स्टोरी में ही डाइड। फिर उसका जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बुढ़ा हुआ, उसने एक बेबी को बर्थ दिया, वो बेबी भी थोड़ा सा बड़ा ही है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। The lifespan of the giant turtle found on the Galapagos or Galapagos
seems weird name, but it is Galapagos Island in South America. is about 170 year. ये giant turtle देखना, ये जो giant turtle होता है ना, इसका जो साइज होता है सच में giant होता है. ये सच में giant होता है. इसका साइज normal turtle जैसा नहीं, इतनू सा होता है. The size of the giant turtle is really very big. ठीक है, जो कि ये जो है ना, ये जो गैलापागोस जो भी लिखा है उस आइलैंड पे पाया जाता है, जिसकी लाइफ स्पान होती है अबाउट 170 ईयर्स. मतलब इतनी लंबी लाइफ स्पान. ओ गॉड, इतने ह्यूमंस भी नहीं जीते. इतना तो ह्यूमंस भी नहीं. ह्यूमंस के छोड़ दो यार, आपने अगर एक खिलौना भी लिया है ना, वो एक नॉन लिविंग थिंग की भी इतनी लाइफ स्पान नहीं होती. कुछ ना कुछ करके टूट ही जाते हैं सचमुच. तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पान नहीं होती है, बट हाँ इन अ सेंस. ठीक है, एंड देखो ये इतना लंबा जी रहे हैं, ये इतना लंबा जी रहे हैं. और आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो मे फ्लाई है वो सिर्फ 1 घंटा जी सकती है. इट कैन लिव ओनली 1 आवर. मतलब इतना, बस 1 घंटा. अभी जन्म हुआ फिर वो मर जाएगी. हाउ इजी इज दैट? मतलब हाउ स्मॉल इज इट्स लाइफ स्पान. मतलब इससे समझ में क्या होता है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान 170 ईयर्स जितनी लंबी और 24 आवर्स जितनी छोटी हो सकती है. अगर उसकी 170 ईयर्स जितनी लंबी हो सकती है तो 24 आवर्स जितनी छोटी भी हो सकती है. At a certain stage of life, living things become capable of reproduction. Later in life, reproduction stage, their organs become weak, and still later, their life comes to an end. फिर धीरे धीरे उनके organs weak हो जाते हैं, and then they die because their life comes to an end. In other, words आप बोल सकते हो कि living beings die. वो डाई कर सकते हैं बिकॉज अब वो देयर लाइफ स्पान जो होती है ह्यूमन की वो ख़त्म होगी, कि वो डाई कर सकते हैं ड्यू टू सम एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ऐसा, मतलब कुछ सडन कुछ सडन इंसिडेंट्स होते हैं ना, उसकी वजह से डाई कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से उनके लाइफ कम्स टू एन एंड. जब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं ना, देन हम लोग सोचते हैं ना कि जो भी इस इंसान में आया है, दिस इज़ नॉट एट ऑल श्योर जो कि हर कोई इस इंसान में जो फिर से सुनो ध्यान से, कि दिस इज़ नॉट श्योर दैट आप इस दुनिया में जन्म लोगे. दिस इज़ नॉट श्योर दैट आप इस दुनिया में जन्म लोगे, लेकिन ये ज़रूर श्योर होता है कि अगर आपने एक बार जन्म ले लिया तो ज़रूर मरोगे. ठीक है, ये श्योर होता है. और इस बात को सोच के हमें भी बहुत बुरा लगता है ना, बिकॉज वी डू हैव सम फैमिली मेम्बर्स, और फिर इमोशंस जागते हैं कि यार ये मतलब there is going to be a period of time when they are also not going to be with us. ठीक है, they are also not going to be with us. The lifespans of different organisms are different. ठीक है, they differ from an organism to the other organisms. तो एक ऑस्ट्रिच 50 ईयर्स तक रहती है, एक डॉग लाइक वो 12 to 18 ईयर्स तक ही रह सकता है, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ स्पान नहीं होती है. एक ऑस्ट्रिच की लाइफ स्पान 50 ईयर्स होते हैं. ह्यूमन की लाइफ स्पान आप जानती होगी 110 साल अप्रॉक्सीमेटली वो जी लेता है. ठीक है, आजकल तो 80 साल भी जीना मुश्किल है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी हैव. पल्यूट हो गया है, मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है पहले के कंपेरेटिवली. Now guys, let's deal with cellular structure. सेल का स्ट्रक्चर. Each and every living organism is made up of cell. Whether वो living organism यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मतलब कि वो एक सेल से बना है. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो मैनी सेल्स से, मतलब मोर देन 1 सेल्स से जब वो बना होता है तो वो मल्टीसेल्युलर हो. ठीक है, यूनिसेल्युलर. और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में वो सेल से बना होगा. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा देख लो, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. पेरीमीशियम देख लो, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस देख लो, वी आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल. ठीक है, आपका जैसे कि एक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल आपकी एक आप ले लो, एक बिल्डिंग है आपकी. एक बिल्डिंग जिस तरह से आपकी ब्रिक्स की बनती है ना, एक बिल्डिंग जिस तरह से आपकी ब्रिक्स की बनती है ना, उसी तरह आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ना सेल्स से बनती है. ठीक है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनती है. और सेल के भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं. मतलब एक छोटा सा सेल जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, यू कैन नॉट सी इट विद योर नेकेड आइज, उसके भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन्स होते हैं. ऑर्गन्स मतलब ऑर्गेनल्स जिनको हम बोलते हैं, वो आप आगे की ग्रेड्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. अब गाइस एक और जो बात रह जाती है कि क्या बड़े ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एलिफेंट हो गई, उसकी जो सेल होगी वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू आंट की सेल छोटी होगी लेकिन एलिफेंट की सेल बड़ी होगी. ऐसा होता है कि नहीं? The cell size doesn't depend on the size of the living organism. एलिफेंट में हाँ ये हो सकता है कि एलिफेंट क्योंकि बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसका सेल का नंबर ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ सेल्स विल बी मोर दैन आंट. ठीक है, उसका नंबर ऑफ सेल्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू आंट्स. आंट्स के पास कम सेल्स होंगे. अगर आंट्स के पास 3 है तो मे बी एलिफेंट्स के पास 10 होंगी. ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है. ठीक है, इतने कम सेल से ऑर्गेनिज्म नहीं बनते हैं, बट या दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. बन सकते हैं, 3 सेल से भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं. आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स की ले लो, वो तो एक ही सेल से बने होते हैं. मतलब उनकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी एक सेल ही होती है.
समझ रहे हो बात को? सो गाइस नाउ लेट्स डील विद द यूजफुल लिविंग थिंग्स। इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, सारी यूजफुल नहीं है। हम यूजफुल और हार्मफुल दो ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करें। अब हार्मफुल किस बेसिस पे, यूजफुल किस बेसिस पे? वो ह्यूमंस के बेसिस पे, ह्यूमंस के यूजेस पे बेसिस पे। अगर ह्यूमंस को उनकी ज़रूरत है तो यूजफुल, नहीं ज़रूरत है वो हमको कहीं से भी हार्म कर रहे हैं तो हार्मफुल। वी गाइज आर वेरी सेल्फिश, टेलिंग इन द बिगिनिंग ओनली, वी गाइज आर वेरी 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 सेल्फिश, ठीक है। प्लांट्स के साथ हम एक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं जिसको बोला जाता है सिम्बायोटिक। बिल्कुल बिल्कुल वैसे वी आर प्रोवाइडिंग प्लांट्स ऑक्सीजन, वी आर प्रोवाइडिंग प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाइल प्लांट्स आर प्रोवाइडिंग विद अस विद ऑक्सीजन, ठीक है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन सो दैट वी कैन ब्रीथ, एंड वी आर exhaling carbon dioxide so that they can breathe, ठीक है। तो वी आर लिविंग इन a relationship, we are forming a chain इन दिस में। तो काफ़ी लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं। आप टाइगर लाइन की देख लो, क्या वो ज़रूरी है हमारे लिए? डू वी इवन नीड दैट? तो कहीं ना भगवान ने इस दुनिया में हर चीज़ को बनाई है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा, कहीं ना कहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के ही बनाया होगा, अगर बनाया है तो। आपका एक टाइगर लाइन ले लो, अगर इस टाइगर लाइन ये सारे नहीं होते तो इस दुनिया में डियर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती, क्योंकि टाइगर लाइन तो होते नहीं ना उनको खाने के लिए। आप टाइगर लाइन की स्किन को देख लो, कितना ज़्यादा मतलब कॉस्टली मिलता है आपको, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है, बहुत मीन करता है हम सबके लिए। बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है उनका जो स्किन होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप देख लो ध्यान से कि अगर डियर्स को टाइगर लायन नहीं खाते तो उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती कि वो हमारे सारे घास फूस जंगल पूरी ख़त्म कर देते खा के। तो हर ना एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई यूज़ होता है। लेकिन एक बात और समझ लो कि अगर टाइगर लायन डियर को नहीं खाते तो हम इंसान नहीं खा जाते। मतलब आप चाइना वाले लोगों को ही देख लो, वो कुछ भी खा रहे हैं आजकल, तो डियर खाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात है? आप सच में समझ लो। तो ये एक चीज़ है, एक मिसकंसेप्शन है जो हर किसी के दिमाग में बैठा होता है, ठीक है। देयर आर सम यूजफुल लिविंग थिंग्स, वेल कुछ हार्मफुल लिविंग थिंग्स, जैसे कि देख लो सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड दिस आर हार्मफुल टू मैन। हम हार्मफुल लिविंग थिंग्स इस बेसिस पे नहीं बोल रहे कि वो हार्मफुल है टू द एनवायरनमेंट, दे आर हार्मफुल टू द अर्थ, दे आर हार्मफुल टू मैन। हमारे लिए हार्मफुल है तो पूरी दुनिया के लिए हार्मफुल है। वी गाइज आर वेरी सेल्फिश टेलिंग यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मस्किटोज जाते उड़ते, दे आर पैरासाइट्स बेसिकली, तो वो आते हैं हमें काट के चले जाते हैं, हमारा खून पी जाते हैं यार। मस्किटोज हमारा खून पी रहे हैं तो मस्किटोज हार्मफुल हो गए, मस्किटोज हम हार्मफुल हो गए। बट हम लोग चिकन खा रहे हैं, हम लोग प्रॉन्स खा रहे हैं, हम लोग गोट खा रहे हैं, हम लोग पूरा खून का छोड़ो, हम लोग तो पूरा ऑर्गेनिज्म खा जा रहे हैं। बट वी आर नॉट हार्मफुल, वी आर यूजफुल लिविंग थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी ह्यूमंस आर सेल्फिश, वी डू नॉट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ठीक है। हम कभी अपने आप को नहीं समझते। आपके जो चूहे होते हैं, दे कम टू योर हाउस, वो आपके बुक वगैरह को खा जाते हैं, कुतर देते हैं, कपड़ों को कुतर देते हैं, दे आर हार्मफुल टू अस। कॉकरोचेस, कई लोग बहुत कॉकरोचेस से डरते हैं ना, उनकी एक अलग ही बॉन्डिंग होती है कॉकरोचेस। कॉकरोच, ओ माय गॉड, लिजर्ड्स तो आए नहीं कि घर पे, तो कहाँ गई है, कहाँ जा रही है? ओ माय गॉड, लिजर्ड कहीं गिर तो नहीं है, कहीं मेरे सर पे तो नहीं है? ओ माय गॉड, कहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं वहाँ तो? छी, लिजर्ड है। ओ माय गॉड, मैं तो इस घर में नहीं रहूँगी, बहुत छिपकलियाँ यार। इतना तो घर में भाई बहन को भी जब रूम में आना होता है ना तो पूछ के आते हैं, और लिजर्ड्स बगैर पूछे रूम में घुस जाते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं, वीड्स, जो कि हार्मफुल होते हैं। वाई आर दे हार्मफुल? बिकॉज यार आप वो ना प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते हैं और फिर जितना भी न्यूट्रिशन है सॉइल से वो उठा लेते हैं, प्लांट्स को नहीं मिलता है। तो आप देखो कोलोकेशिया लीव्स कोज इचिंग, उनसे खुजली होती है, ठीक है। अब कोलोकेशिया लीव्स जो है उनसे हमको खुजली होता है, उनको खुजली नहीं होती, अर्थ को खुजली नहीं होती, ह्यूमंस को खुजली होता है। दैट इज व्हाई दे आर हार्मफुल, ठीक है। तो किस बेसिस पे हार्मफुल एंड यूजफुल लिविंग थिंग्स हम लोगों ने डिवाइड किए, क्लासीफाई किए हैं, वो है टू द बेसिस ऑफ हाउ यूजफुल आर दे टू मैन एंड हाउ हार्मफुल आर दे टू मैन, ठीक है। वो हमने मैन के बेसिस पे डिवाइड किए। अब आपका जो एल्गे होता है वो ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट करता है और डिसीजेज स्प्रेड कर रहे हैं फंगाई एल्गे। अब देखो एल्गे जो होता है ना, कई बार आपका जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वजन बन सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो आपका रिवर है वो एल्गे से कवर हो चुका है। ऑक्सीजन कहाँ अंदर पहुँचेगा? ऑक्सीजन नहीं पहुँचा तो डिजॉल्व भी नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं हुआ तो फिशेस को मिलेगा कहाँ से? फिर एक्वेटिक एनिमल्स तो मर जाएंगे। तो हार्मफुल वो इस तरह से है नहीं, वो बहुत डिसीजेज हमको कोज कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को पल्यूट कर दिया करता है रिवर वगैरह के। तो
इतने सारे रीजंस हैं. नाउ गाइस लेट्स डील विद व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स को हंट करते हैं, उनको मारते हैं एंड दे खा जाते हैं. अब आप एक सच बात बताओ, डोंट द ह्यूमन हंट. हम क्या हंट नहीं करते, हम शिकार नहीं करते. आपने राजा महाराजा का देखा होगा, आपने कोई ऐसी लाइक, ठीक है, आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी ना, आपने अकबर बिरबल देखा होगा. अकबर बिरबल जो कि बहुत फेमस है, उसमें जी अकबर होता है, आज तो हम जा रहे हैं शिकार के ऊपर, 2 शेर को तो तीर लगा के ही आएंगे. तो उसी तरह वी ह्यूमंस आर आल्सो किलिंग. हम ह्यूमंस भी किल कर रहे हैं, हम ह्यूमंस भी हंट कर रहे हैं. शिकार के लिए तो हम भी जा रहे हैं. हम ह्यूमंस हंट करके खा नहीं रहे, ऐसा है क्या कि हम हंट करके खाते हैं. वी डू हैव चिकन, स्पेशली ऑल दोज नॉन वेजिटेरियन पीपल आउट देयर. बट हम वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, ठीक है. हम वाइल्ड एनिमल्स नहीं है. भले आपकी मैम बोले कि आप जानवर जैसे हो, आप जंगली जानवर हो, भले आपकी मम्मा बोले आप जंगली जानवर हो, बट ऑलवेज कीप ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ दैट आप जंगली जानवर नहीं हो. ट्रस्ट योरसेल्फ, ठीक है. तो अब क्यों नहीं है ये आप सबको आगे पता चलेगा, ठीक है. अच्छा एक सेकेंड, क्यों नहीं है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं लिख देते? व्हाई आरंट वी वाइल्ड एनिमल्स? व्हाई डोंट यू गाइस राइट मी इन द कमेंट्स? आई एम डैम श्योर दैट नो वन of you has answered. एक बार देख लेते हैं if someone of you have the answer and you can explain like this, ठीक है. Now इनको predators भी बोला जाता है, ठीक है. predators भी बोला जाता है, for example tiger, lion, wolves, leopards etc. Sometimes due to deforestation such animals enter human settlements. क्योंकि deforestation, हमने तो उनके जंगल काट दिए. जहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं हम ह्यूमन ने क्या किया, जंगल काट रहे हैं ताकि हमको ये चेयर्स मिले बैठने के लिए, हमको टेबल मिले, हमको मतलब फर्नीचर चाहिए ना, हमको फर्नीचर अच्छे से मिले, हमको चूल्हा जलाने के लिए वुड मिले. इसलिए हम लोग ने सारे जंगल तो काट दिए. सारे जंगल को तो मतलब डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग ऑफ ट्रीज. सो वी हैव एक्चुअली डन दैट. अब हम लोगों ने जंगल काट दिया तो अब ये जानवर क्या करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाएंगे. मतलब तुमने मेरा घर उजाड़ा, मैं तुमको ही उजाड़ दूंगा. दीज एनिमल्स वाला लाइन ने बोलेगा तुमने मेरे जंगल को काटा, मैं तुमको ही काट जाऊँ. काटना छोड़ो, मैं तुमको खा जाऊंगा. तुमको नहीं, मैं पूरे के पूरे तुम्हारा जो ह्यूमन का सेटलमेंट है उसको खा जाऊंगा. मैं ह्यूमंस को खा जाऊंगा. इसलिए कई बार हम ह्यूमंस जहाँ रह रहे होते हैं ना, वो एनिमल्स जंगल छोड़ के वहाँ यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि जंगल छोड़ के आ रहे हैं. जंगल तो अब रहा नहीं, हमने तो उसको कट कर दिया. हम लोगों ने तो डिफॉरेस्टेशन का ये जो वर्ड का इन्वेंशन है ना, ये डिस्कवरी नहीं की हमने इन्वेंशन किया है डिफॉरेस्टेशन का. हमने उसको इन्वेंट किया, पेड़ों को कट करना स्टार्ट किया. और फिर वो क्या करते हैं, आप वो ऐसे नहीं है यार, वो बदला लेने नहीं आते कि इन्होंने हमारा घर को काटा हम इनको खा जाएंगे. वो भी बेचारे यार वो फूड के सर्च में आते हैं. जंगल नहीं रहा तो खाना कहाँ से मिलेगा, तो वो खाना ढूंढते ढूंढते ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस को किल करके खा जाते हैं. आपने काफ़ी केसेस ऐसे पढ़े होंगे ऑनलाइन, एक बार सर्च करके तो देखना. Yes guys, so I had a lot of fun in this session teaching you people. I hope you guys also enjoyed today's session. It was super amazing and interesting and long as well. If you have enjoyed it, then do not forget to subscribe to my YouTube channel, like this video as much as possible. Hit on the like button as I say always. And also do not forget to hit on this bell icon so that you can get notified each time I come live or upload a new video. Subscribe to my YouTube channel, like this video, share this video as much as possible, because it appreciates me a lot. So guys, now let's meet in our another new amazing, interesting and exciting video of Maharashtra board and other boards as well, like ICSE and CBSE and NCERT. So yeah guys, so till then take care, tata, bye bye, love you all.